Hi student, look again we are here with our same topic, trigonometry. Look बेटा, अभी तक हम लोगों ने अपने trigonometry sections में क्या किया? We have seen that our 6 T ratios, 6 basic T ratios, in which we have till now we have seen that the ratios are defined. Our sign A is defined. Look, in all T ratios, first of all we have a specific triangle there. हमारे पास एक specific triangle होती है. We have all discussions about a right angle triangle there. और उसमें से हमारे पास एक एंगल राइट एंगल है, तो बाकी दोनों एंगल्स हमारे क्या होते हैं बेटा? एक्यूट एंगल होते हैं. उन किसी भी दोनों एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में अपने 6 टी रेशियोज को डिफाइन करते हैं. जहाँ पे वी हैव डिफाइंड आवर साइन एज अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. देन वी हैव डिफाइंड आवर नेक्स्ट रेशियोज कॉस अबाउट एंगल ए और अबाउट एंगल बी इज गिवन बाय बेस अपॉन हाइपोटेनस. देन वी हैव डिफाइंड आवर टेंजेंट, इट्स अबाउट व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये हमारे मेन वी हैव मेन 3 टी रेशियोज देयर. Then we have defined about our what? Again we have again 3 T ratios, and one is cosec. Cosec is just reciprocal of sine. Cosec is given by hypotenuse upon perpendicular. Then we have the next sec. Sec is a reciprocal of cos. We have a cos as a base to the hypotenuse, but our sec is what? Hypotenuse of base. Then lastly we have a cotangent. It's known as cot theta, cot A. It's a reciprocal of tangent base to the perpendicular there. Then now look, we have discussed so many basis questions till now. Now we are going to start with some problems, related problems again with our the problems based on our basics T ratio there. One of the problem what we have in a triangle ABC, right angle at C. We have given that there is a right angle triangle, right angle at C. हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है सी पे. ठीक है, वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी. It's given that if tan A is equal to 1, then we have to verify that 2 sin A into cos A equal to 1. We have to verify that. It's given that tan of A is equal to 1. ठीक है बेटा. Tangent of A is given there 1. Then we have to be verify that 2 sin A into cos A equal to 1. What we have to verify that? We have to be verify that here 2 of sin A into cos A is equal to 1. ठीक है, हमें यहाँ पे वेरीफाइड करना है कि जो हमारी वैल्यू है इस 2 sin A into cos A is equal to 1. ठीक, कैसे वेरीफाई करेंगे? हम जो भी सारी चीज़ें बेटा वो गिवन के साथ जाते हैं. वी हैव गिवन दैट tan ऑफ A इक्वल टू 1. अब ये हमारी टेंजेंट ऑफ A के रेस्पेक्ट में हमारी tan की वैल्यू 1 दे रखी है. तो बेटा हमारी tan A, इसके रेस्पेक्ट tan A हमारी क्या हुई बेटा? इट्स अ रेशियो ऑफ BC परपेंडिकुलर टू द बेस अपॉन AC. ठीक है बेटा. अभी हम क्या देख रहे हैं कि BC अपॉन AC जो हमारी वैल्यू है इट्स इक्वल टू व्हाट? 1. मीन्स यहाँ से जो हमें गिवन पार्ट से मिल रहा है बेटा वो क्या मिल रहा है? तो जो हमारा वैल्यू है, व्हाट वी हैव द वैल्यूज देयर, जो हमारी BC की वैल्यू है वो बेटा AC के इक्वल है. ठीक, नाउ वी हैव BC इक्वल टू AC. मीन्स हमारा जो BC है, जो परपेंडिकुलर जो बेस वो इक्वल है. चलिए मान लिया व्हाट वी टेक, वी हैव टेक दैट ये दोनों की वैल्यू x के बराबर है. ओके, हमारे दोनों वैल्यूज एक. देन वी हैव BC इज x, AC इज आल्सो x देयर. हमारे पास BC भी x है, AC भी x है बेटा. ठीक, देन वी आर गोइंग टू यूजिंग आवर पाइथागोरस थ्योरम. देन व्हाट अबाउट हाउ वी गेट आवर AB? नाउ आवर AB इज गिवन बाय इट्स व्हाट? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. देन वी गेट AC इज अगेन x. देन वी हैव x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. देन वी गेट रूट ऑफ 2x स्क्वायर. देन वी गेट x root 2. Now we get the value of AB is what? We get x root 2. ठीक है. Now look बेटा, we have a right angle triangle ABC, right angle at C. We have given that our tan is equal to 1. Then we have to verify that that 2 sin A into cos A is equal to 1. हमें ये वेरीफाई करनी है कि जो हमारी 2 sin A into cos A उसकी वैल्यू 1 है. Then we have started tan is equal to 1. हमने फिगर ड्रॉ किया जहाँ पे इट्स राइट एंगल एट C. देन वहाँ पे हमने क्या किया? वी हैव अ tan is equal to 1. इस रेस्पेक्टिव फिगर में tan एंगल 1 है. देन वी हैव अ परपेंडिकुलर BC एंड AC is our base. Then we have BC upon AC is equal to 1 there.
देन वी गेट दैट द वैल्यू ऑफ BC इक्वल टू AC, देन हमें हमारे पास हमने x ले लिया, x इज टू x, देन वी गेट द व्हाट, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ और AB there, the value of AB is what, we get x root 2. Now we have to verify that 2 sin A into cos A is equal to 1. ठीक है बेटा, हमें 2 sin A into cos A की वैल्यू 1 निकालनी है, तो क्या करते हैं बेटा, फिगर पे जाते हैं, वी आर गोइंग टू हियर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin A. फर्स्ट ऑफ ऑल sin A की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा फिगर से, sin A इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, मीन्स BC टू द AB, BC की वैल्यू बेटा हमारी क्या है x, AB की वैल्यू क्या है बेटा x रूट 2, देन वी गेट 1 अपॉन रूट 2, देन वी हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos A. सेम फिगर पे जाते हैं, cos A की वैल्यू निकालते हैं, ठीक, cos A क्या होता है बेटा, बेस टू द हाइपोटेनस, बेस हमारा AC है, हाइपोटेनस AB है, AC टू द AB, AC x है, AB x रूट 2 है, देन वी गेट 1 बाय रूट 2. नाउ ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको. अभी हमारे पास sin A की वैल्यू 1 बाय रूट 2 है, cos A की वैल्यू 1 बाय रूट 2 है, देन वी हैव टू वेरीफाई दैट 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1. टेक लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया. नाउ वी आर गोइंग टू टेक आवर लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में व्हाट वी हैव 2 sin A इंटू cos A, then we get 2. What is the value of sin A? It's a 1 by root 2. We take 1 by root 2. What is the value of cos A? Again we have a 1 by root 2. ठीक है बेटा. Now what we see that 2 into root 2 is what? It's a 2. Then what we get here? We get 1. ठीक है. दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो कि हमें वेरीफाई करनी थी. वी हैव टू वेरीफाई दैट द 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1. हमने 2 sin A इंटू cos A लिया, वैल्यू पुट किया, वी वेरीफाई दैट या इट्स वैल्यू इज व्हाट इक्वल टू 1 देयर. ठीक है. तो इस तरह किसी भी क्वेश्चंस को बेटा द वे ऑफ सॉल्विंग दैट हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस को आप घर बैठ के रिवाइज करिएगा. अगला क्वेश्चन लेते हैं. Look, we are going to take next question. जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है इस आज के we have asked in last year board exams and there in a triangle ABC, right angle C. Again we have a right angle triangle there. It's a right angle at C. Again एक triangle draw कर लेते हैं. We are going to draw a right angle triangle, right angle at C. ठीक है. We have given that in a triangle ABC, right angle at C, if tan A is equal to 1 by root 3, then we have to find the value of, again we have given that tan F of A is 1 by root 3. बेटा हमारे पास जो given है, it's given that tan A is equal to 1 by root 3, then we have to find the value of sin into cos B plus cos into sin B. We have to find the value of sin A into cos B plus cos A into sin B. ठीक है. Look, again देखिए थोड़ा सा आज हमने कुछ ऑफ द मार्क्स क्वेश्चन लिए जहाँ से कि अगर आपको बेसिस पे कमांड हो जाए. व्हाट वी हैव गिवन दैट वी हैव गिवन दैट द वैल्यू ऑफ tan A इक्वल टू 1/3. वी हैव गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट्स अ राइट एंगल एट C, और हमारे पास राइट एंगल एट C पर है. उसके बाद हमारे पास गिवन है बेटा कि वी हैव द वैल्यू ऑफ tan A इक्वल टू 1/√3. देन वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B. अगेन हम उसी
सेम जो लास्ट क्वेश्चन में हमने बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया था हम उसके साथ ही जा रहे हैं। ये हमारे पास 10a की वैल्यू दे रखी है, 10a के रेस्पेक्ट में चलते हैं, 10a के रेस्पेक्ट में चलेंगे। देन व्हाट इज आवर 10a, दिस इज आवर इस 10a के रेस्पेक्ट में जाएंगे। देन वी हैव BC इज आवर परपेंडिकुलर, AC इज आवर बेस। तो जो हमारे पास BC अपॉन AC है बेटा उसकी वैल्यू दे रखी है 1/√3। अगेन इट्स अ रेशियो दियर। अब हमारे पास सॉरी बेटा हमारे पास साइड्स की रेशियो BC अपॉन AC की रेशियो दे रखी है बेटा, ठीक है। वो क्या है 1/√3। तो रेशियो पे चलते हैं 1/√3। तो BC को हमने क्या ले लिया K, देन AC इज व्हाट आवर √3K, ठीक है। BC हमारी K हो गई, AC हमारी √3K। सिंस वी हैव गिवन अप द रेशियो ऑफ BC टू AC इज व्हाट इज इक्वल टू 1/√3। हमारे पास 1/√3 गिवन था। Then we have take the BC as a K, AC as a √3K. Now we are going to we have to find out the unknown values AB there. How we can find out the AB? By using Pythagoras theorem. The value of AB is given by AC square plus BC square. Then we get here 3K square and BC square is K square. Then 3K square plus K square we get 4K square. Then what is the value? AB is 4K square. Then the value of AB is what 2K. क्या मिलेगा बेटा हमें? We get the value of AB is what 2K. Look बेटा अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास जो वैल्यू है 10 is equal to 1/3 BC by AC से हमने K और K upon √3 निकाल लिया। Now we have to find the value of sin A into cos B plus cos A into sin B। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। देन वी हैव AB इज इक्वल टू 2K। अभी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइज की रेशियो है। तो देन हम इस गिवन पार्ट्स को रफ करते हैं और बाकी वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमारा 10 इज इक्वल टू 1/√3 का काम हो चुका है यहाँ पे। देन फ्रॉम फिगर वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए हियर। साइन ए परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, देन इट्स अ K अपॉन 2K। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू बेटा आएगी 1/2 cos B cos ऑफ B। अब देखिए cos ऑफ B के रिस्पेक्ट में आते हैं, ये हमारा एंगल B है। अब इसके रिस्पेक्ट में बेटा चेंज करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा बात को। जैसे हमारा एंगल B इसके रेस में बेटा परपेंडिकुलर ये है, ये तो हाइपोटेनस रहेगा 90 का अपोजिट है, ये हमारा बेस हो जाएगा। cos B क्या होता है बेस टू द हाइपोटेनस, देन K अपॉन 2K। Again we get its value is what 1/2, ठीक है बेटा। Now we have the value of sin A cos B. Now we are going to find the value of what cos A into sin B। अब हम cos A into sin B की वैल्यू निकालने जाएंगे। cos A फिगर पाइए फिर से cos A क्या होता है बेटा बेस टू द हाइपोटेनस। A के रेस्पेक्ट में हमारा AC बेस है, AB हाइपोटेनस है, देन √3K अपॉन 2K, then we get √3/2। Now we have to find the value of what, हमको sin B की वैल्यू निकालनी है। sin B अगेन B के रेस्पेक्ट में आते हैं। sin क्या होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस है। देन व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ sin B इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, देन √3K is to 2K, then we get its value is equal to what √3/2, ठीक है बेटा। now from given information we are going to find out the value of sin A cos B cos A into sin B। फिर से इसको रिवाइज करते हैं। हमारे प्रॉब्लम में हमने स्टार्ट किया था इफ यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इट्स अ राइट एंगल एट C। वहाँ पे हमने स्टार्ट किया था इट्स गिवन दैट द वैल्यू ऑफ 10 ऑफ A इज 1/√3। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin A into cos B plus cos A into sin B। तो बेटा हमने 10 इज इक्वल टू 1/√3 से स्टार्ट किया, रफली फिगर ड्रॉ किया, राइट एंगल C पर रखा। 10 ऑफ A का मतलब कि परपेंडिकुलर टू द बेस का रेशियो है। परपेंडिकुलर हमारा 1 था, बेस √3 था, तो हमने क्या लिया 1 into K, 1K मतलब K आया एंड √3K। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में BC की वैल्यू K आई, AC की वैल्यू √3K आई। देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस, वो हमें क्या मिला बेटा √3K मिला। अभी क्या हुआ, हमें बेस मिल गया, हमें परपेंडिकुलर मिल गया, तो हमने हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली 2K। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin into cos B प्लस cos A into sin B। देन उस फिगर से बेटा हमने क्या किया वैल्यू निकालने गए। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin A फ्रॉम फिगर वी गेट 1/2। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ cos B, अगेन वी गेट 1/2 with respect to this angle B।
then we are going to find the value of cos A, we get root 3 by 2. Then we are going to find the value of sin B with respect to this angle B. Now we have all the values of sin A, cos B, cos A into sin B. Now we are going to put the here because we have to find out the value of this expression. Then इस expression में क्या करते हैं बेटा, सारी values put करते हैं. 1/2 cos B 1/2 प्लस cos A क्या था हमारा root 3/2. sin B क्या है बेटा मेरा root 3/2. 1/2 क्या आएगा, we get 1/4 root 3/2 we get 3/4. then finally we get 4/4 equal to 1. means जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी we have to find out the value of sin A into cos B plus cos A into sin B. उसकी वैल्यू बेटा क्या आई, we get 4/4 is equal to we get 1 there. तो हमें लुक इट्स लास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया, हमारे पास वैल्यू पता थी, हमने क्या किया उस एंगल्स के रेस्पेक्ट में सारे जो एक्सप्रेशन की वैल्यू थी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, वो सारी वैल्यूज फाइंड आउट की, पुट की. देन वी गेट द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज व्हाट इज इक्वल टू 1. हमें क्या मिला बेटा, वैल्यू 1 मिल गया. ठीक है, अब आप लोग सिमिलर क्वेश्चंस को आप रिवाइज करिएगा. वी आर गोइंग टू टेक अ नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन देयर. वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन टू यू अगेन. नाउ लुक व्हाट वी हैव गिवन दैट in our next question we are going to take another basic question which we are not discussed till now, जो हमने जैसा क्वेश्चन अभी तक डिस्कस नहीं किया है. look in our next question what we have if the tan theta plus 1 by tan theta is equal to 2. हम जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है we have given that if tan theta plus 1 by tan theta is equal to 2, then we are going to find out the what value of टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा. ठीक है, हम वहाँ पे फिर टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर 1/10 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. इट्स गिवन दैट वी हैव टू बी गिवन दैट बेटा हमारे पास गिवन था कि जो वैल्यू है व्हाट वी हैव गिवन दैट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा इज इक्वल टू 2. वी हैव गिवन दैट इफ टेन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा इक्वल टू 2, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा. बेटा हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है कि टेन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा इज इक्वल टू 2. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा. अब देखिए बेटा, अब इसको सॉल्व करने पे आए तो यहाँ पे दो मेथड की बात करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं. पहले तो अगर गिवन से स्टार्ट करें, वी हैव टेन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा इसको टू 2. फर्स्ट मेथड की बात करते हैं तो आप क्या करिए, हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दिया बेटा. देन व्हाट वी हैव यूजिंग आइडेंटिटी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी. और इधर व्हाट वी गेट द स्क्वायर ऑफ 2 इज व्हाट 4. अभी देखिए नाउ वी गेट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है द वैल्यू ऑफ 1 बाई टेन थीटा इज व्हाट इट्स अ रेसिप्रोकल. तो ये वैल्यू हमारी बेटा क्या हो जाएगी, या टेन कैंसिल कर दें. देन वी गेट हियर 1. आप 1 बाई टेन को कॉट करके भी रेसिप्रोकल कैंसिल करते, या टेन थीटा इंटू थीटा भी कैंसिल कर देंगे. देन नाउ वी गेट हियर 2 इज इक्वल टू 4. देन द वैल्यू ऑफ आवर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2. तो बेटा ये हमारी फर्स्ट मेथड थी जहाँ पे हमने गिवन से टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 निकाली.
सेकेंड मेथड की बात करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस विद आवर सेकेंड मेथड। अगर हमारी यहाँ पे बात करेंगे हम सेकेंड मेथड की, तो क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। वी स्टार्ट विद अगेन आप टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा इक्वल टू 2। अभी एलसीएम ले लेते हैं। देन वी गेट 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 10 थीटा। मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया। आप इन सिंपल मैंने आप क्या समझ सकते हैं कि हमने दोनों साइड्स में 10 थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 थीटा इंटू 10 थीटा 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 1। इधर आएगा हमारे पास 2 10 थीटा। अभी बेटा क्या करते हैं, एक साइड में लेते हैं। देन वी हैव 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 10 थीटा इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे आप इट्स ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आता है, बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 10 मीन्स आप हमारा जो बेटा ये फॉर्मेट है वो क्या है, इट्स अ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इट्स अ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देन व्हाट वी हैव गेट हियर 10 थीटा माइनस 1। ये हमारा 10 थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, 10 थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। देन वी हैव, अभी लुक ए स्क्वायर का अगर वैल्यू 0 आ रहा है तो वो कब होगा, जब आपका ए 0 होगा। देन वी गेट हियर व्हाट, देन वी गेट दैट from here 10 theta minus 1 equal to 0, then we get 10 theta is equal to 1। अब 10 थीटा की वैल्यू 1 मिल गई। अभी बेटा हमें क्या निकालना था, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू। यहाँ पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 1/1 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। देखिए सेकेंड मेथड से भी हमें आंसर 2 मिला, फर्स्ट मेथड से भी 2 मिला, सेकेंड मेथड से भी 2 मिला। आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। देन वी कैन सॉल्व ओवर दिस वैल्यूज देयर। ठीक है, लुक बेटा अभी टिल नाउ वी हैव डिस्कस आवर सम प्रॉब्लम्स। हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखा जो कि हमारे कुछ बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ रखे थे, उनको डिस्कस किया। अभी हमारे पास बेसिस क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद, अभी हम चलते हैं इसके सेकंड पोर्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। अभी हम क्या बात करेंगे, हमने अभी बेसिक्स टी रेशियोज को देखा, उनके साइड्स के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया था। नाउ वी आर गोइंग टू बी फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स देयर, कि हम कैसे साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट और कोसेकेंड के ये जो स्पेसिफिक एंगल्स है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्रीज, इन पे हमारी वैल्यूज क्या होगी। अभी हम मूव करते हैं अपने, वी आर गोइंग टू बी रीड अबाउट द वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज इन विद रिस्पेक्ट टू सम स्पेसिफिक एंगल देयर। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस विद, चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक बेटा, अब तक हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन देखा है। अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ आवर सम स्पेसिफिक एंगल्स। आवर स्पेसिफिक एंगल इज व्हाट, इट्स 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्रीज। तो अभी हम एक चार्ट पेपर करते हैं जहाँ पे उस चार्ट के वैल्यूज को आपको लर्न करना है। हम निकालेंगे इट्स 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, ये हमारे एंगल्स हैं थीटा। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, थीटा, और यहाँ पे अपने टी रेशियोज पे लेते हैं। फर्स्ट क्या होगा हमारा टी रेशियो, इट्स आवर साइन। ठीक है, हम स्पेसिफिक एंगल 0 पे 30 पे 45 60 90 इसी स्पेसिफिक एंगल्स पे हम अपने टी रेशियोज को डिफाइन करेंगे। पहला रेशियो हमारा साइन है, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस विद कॉस, साइन कॉस, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस विद टेन, देन हम हमारा कॉट होगा, देन वी आर गोइंग टू बी सेक, एंड लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस विद कॉसेक। ठीक,
तो जो हमारी वैल्यू होगी साइन जीरो की, अब इसके बाद अभी हम स्पेसिफिक एंगल से वैल्यूज कैसे आ रही हैं उनकी डिस्कशन भी करेंगे. वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द geometrical we are going to by geometrically the values of the sin 30, sin 45, sin 60 and 90 डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट पे देखिए आप ये वैल्यूज आपको कैसे लर्न करनी है. दो वैल्यू होती है साइन जीरो की, इट्स वी हैव जीरो. साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है बेटा. साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 91. कैसे लर्न करना है आपको, आप पहले साइन की वैल्यू लर्न कर लीजिए. साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91. आप ये लर्न कर लीजिए. और इसके बाद में बेटा जो हम यूज़ करेंगे, अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको भी माइंड में सेट करिए. इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि जो हमने जो स्टार्टिंग की थी, हमने वी हैव डिस्कस दैट वी हैव स्टार्टिंग में आपको याद होगा हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया था. ठीक है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल लिया था, वो 90 डिग्री था. उसके बाद जो हमारी एंगल ए और सी थी, आप अपने माइंड में सेट करिएगा, उनकी जो सम थी वो क्या थी, वो 90 डिग्री. मीन्स जो हमारी एंगल ए और एंगल अगर हमने राइट एंगल को बी लिया तो एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री, मतलब दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री थी. तो मीन्स हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा वी हैव अ कंप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्मूला देयर. हमें कंप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्मूला जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारी साइन है कॉस है, आपको लर्न करने बता रहा हूँ. हमारी साइन और कॉस आपस में कंप्लीमेंट्री होंगी. टेन कॉट के साथ कंप्लीमेंट्री होगा, सेक कॉसेक के साथ होगा. ये फर्दर बात होगी वैल्यूज के बेसिस पे, आप देख लीजिएगा. जब हम उसको वैल्यूज को निकालेंगे तो वहाँ दिखा देंगे कि आपका साइन 30 और साइन 60 ये वैल्यूज क्या करेंगे, बीइंग कंप्लीमेंट्री वो सेम हो जाएंगी वहाँ पे. तभी आपको क्या करना है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91. कॉस और साइन कंप्लीमेंट्री हैं. लर्न करने के लिए क्या करिए आप, जीरो किसके साथ कंप्लीमेंट्री होगा, 90 के साथ. मतलब जो वैल्यू आपकी साइन 90 की है वो वैल्यू कॉस 0 की होगी, तो इसको 1 लिखिए. 30 और 60 कंप्लीमेंट्री होते हैं तो यहाँ क्या आएगा बेटा, √3/2. 45 आपस में कंप्लीमेंट्री है, सेम वैल्यू आएगा 1/√2. कॉस 60 की वैल्यू 30 के साथ कंप्लीमेंट्री होगी, वी गेट हियर 1/2. और 90 जीरो कंप्लीमेंट्री है तो यहाँ बेटा हमें मिलेगा 0. ठीक, तो हमारे पास अभी कॉस के भी वैल्यू हो गए. अब कैसे आप 10 की वैल्यू याद करोगे, हाउ कैन यू लर्न द वैल्यूज ऑफ 10. तो बेटा हमारी 10 थीटा होती है, वो होती है द रेशियो ऑफ साइन थीटा इज टू कॉस थीटा. आप पुट कर लीजिएगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, कॉस थीटा आपकी बेस टू द हाइपोटेनस. जब आपका हाइपोटेनस कैंसिल होगा देन वी गेट परपेंडिकुलर टू द बेस, मींस वी गेट आवर टेंजेंट रेशियो देयर. तो जो हमारी टेंजेंट रेशियो क्या है, वो साइन और कॉस का रेशियो है. देन 0/1 व्हाट वी गेट 0 हियर. 0/1 की वैल्यू मिलेगी बेटा, वो हमें 0 मिल जाएगा. वी गेट 0 हियर. साइन 30 टू द कॉस 30, टेन 30 का वैल्यू मिलेगा 1/2/√3/2. देन व्हाट वी गेट 1/√3. then 1/√2/1/2 we get 1 here. √3/2 1/2, 2 and 2 cancel, √3/1 we get √3 and 1/0. यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा 1/0, 0 से हम किसी भी नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकते. मैथ के टर्म्स में हमारा अनडिफाइंड टर्म्स है. देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, इसे हम क्या बोलेंगे, या तो अनडिफाइंड लिखेंगे या वी यूज ए नोटेशन इन्फिनिटी साइन. तो 1/0 10 90 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी. क्या हो जाएगी, वी गेट इन्फिनिटी देयर, वी गेट इन्फिनिटी देयर. ठीक है, अब कॉट हमारा क्या है, रेसिप्रोकल है. किसका, टेंजेंट का. रेसिप्रोकल भी है, कंप्लीमेंट्री है. आपको जैसे भी लर्न करना लर्न कर लीजिए. ठीक है, रेसिप्रोकल लेते हैं. कॉट हमारा रेसिप्रोकल टेंजेंट का, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/0, अगेन 1/0 इन्फिनिटी. 1/√3 का रिवर्स रेसिप्रोकल क्या होगा, वी गेट √3/1, वी गेट √3. 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है. √3 1/√3 वी गेट 1/√3. और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल लेंगे, देन व्हाट वी गेट 1/∞ इज व्हाट, 0. ठीक है, तो अभी हमारे पास cot 0, cos 30, cot 45, cot 60, cot 90 की वैल्यू आ गई. हमारा सेक क्या है बेटा, रेसिप्रोकल है cos का 1/1 वी गेट 1. √3/2 रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3. 1/√2 का रेसिप्रोकल √2. 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 1/0 अगेन वी गेट इन्फिनिटी. कॉसेक का रेसिप्रोकल बेटा साइन का 1/0 वी गेट इन्फिनिटी. 1/2 का रेसिप्रोकल बेटा वी गेट 2. 1/√2 का रेसिप्रोकल वी गेट √2. √3/2 का रेसिप्रोकल वी गेट 2/√3 एंड 1/1 वी गेट 1. तो लुक बेटा, ये थी हमारी स्पेसिफिक एंगल्स की टी रेशियोज. ठीक है, आप घर बैठ के इनको लर्न करिएगा और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे आप लर्न कर लीजिएगा. इनकी वैल्यूज लर्न होगी, देन ही हम इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएंगे. देन
नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स बाय ज्योमेट्रिकल, हाउ कैन वी गेट दिस वैल्यूज ज्योमेट्रिकली. थैंक्स टू ऑल.